سبھی کو السلام علیکم. جتنے بھی بھائی ہیں وہ آپ ایک کام کریے, جسے پتہ نہیں ہے تو ایڈ اے کمنٹ کے بغل میں ایک کیمرہ بنا ہے, اس پہ پلس سائن ہے, اسے کلک کر دیجیے, پھر ریکویسٹ بھیجیے آپ مجھے. حسن رضوی صاحب گوگل میٹ پہ ہوا کرے کیا پھر یہاں سے کاٹ کے اگر آپ بولے تو, کیونکہ ان کا اس میں جوائن بھی نہیں ہو رہا ہے. آنے تمہیں بھائی ریکویسٹ یار آپ مجھے بھیجیے. ایک کام کر رہا ہوں, میں آپ کو وہ لنک بھیج رہا ہوں تو آپ جوائن کریے گا. ایک منٹ. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ رکو. آواز آ رہی ہے میری؟ جی حضرت آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے, میری آ رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. بلا لو اس کو, اور ایک کمنٹ سیکشن جو ہے جب سب لوگ آ جائیں تو بند کر دیجیے گا, میں شیئر کر دیتا ہوں اس کو. ٹھیک. یا رسول اللہ علیہ السلام. الحمد للہ رب العالمین. میں ریکارڈنگ اسٹارٹ کر رہا ہوں. ٹھیک. جی, اور الازہر کو لیا آپ نے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی, یہ الازہری حنفی جو یا الازہری فاؤنڈیشن جو تھے بیچ میں, ان کو لیا آپ نے؟ جی میں بھیجا نے ان کو آپ ریکویسٹ نے؟ دی ہے, ابھی تک وہ جوائن نہیں ہوئے. یہاں پہ ان کا میسج آ رہا ہے, کمنٹ آ رہا ہے, ریکویسٹ نہیں جا رہا ہے, تو آپ لنک ان کو بھیج دیجیے جیسا آپ نے مجھے بھیجا ہے, کیونکہ آپ کی اس میں ریکویسٹ نہیں جا رہی تھی. وہی میں نے کیا ہے, وہ جوائن ہو نہیں پا رہے ہیں. ان کا لکھ کے آ رہا ہے کہ ہی کین ناٹ انیبل ٹو جوائن. اچھا ٹھیک ہے, چلے بسم اللہ. تو حضرت دیکھیے 2 منٹ ٹائم آپ کے پاس رہے گا, 2 منٹ ان کے پاس رہے گا. جی اس بسم اللہ. ڈبیٹ اس مناظرے میں کوئی گالی گلوچ نہیں, کوئی ویسا ویسی نہیں ہوگی, دلیل کی بیسس سے بات ہوگی. چلیے انشاءاللہ اسے شروع کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو چلے بسم اللہ.
جیسے کہ آپ نے جو इससे पहले मैं एक آ، बात कहूंगा جی मैं दोनों भाई से جی कि टाइमिंग आप अब्दुल्ला भाई सेट कर लें कि कितनी देर मुझको बोलना है जी और जी कितनी देर इनको बोलना है, वो सब बता दीजिएगा ताकि हम दोनों को आसानी। ठीक है, 2 मिनट جی आपको बोलना है, 2 मिनट इनको बोलना है। ठीक है, 2-2 मिनट रहेगा। जैसे टाइमिंग कंप्लीट होगा جی मैं बताते रहूंगा। ठीक है। ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں بھی کچھ اپنی پوائنٹس رکھوں، اجازت ہے؟ जी जी इंशाल्लाह शुरू करिए। ٹھیک ہے دیکھیں، فرسٹ آف آل کی جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے، ٹھیک ہے، گھما پھرا کے نہیں، ساتھ کافی ہے، انشاءاللہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے۔ اس کے بعد لہجہ سنجیدگی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر یہاں پر وقت اگر کی قلت ہے تو اسی پارٹس کو ہم کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری اور چوتھی پوائنٹس یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی دلائل یا اگر آپ کوئی ایسا سوال پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کا پوائنٹس تھا، تو اگر ہمیں کوئی دوسری دلال یا دوسرا پوائنٹس پہ اگر ٹیک اوور لینا چاہے تو ہم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آواز آئی؟ دیکھیں پہلے میں وضاحت کر دوں، کوئی بھی دلائل جب یہ پیش کریں گے تو ہوں ہوں، یا تو ان کی مکمل اس پر تحقیق ہو تاکہ اس دلیل پر بات ہو۔ اگر جی یہ دلیل جو پیش کرے اس پر ان کی تحقیق نہیں تو یہاں پر یہ بتائیں گے کہ میری اس پہ مکمل تحقیق نہیں ہے، اس پر میں بات نہیں کروں گا، پھر دوسری دلیل آپ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کے بعد جو آپ نے جو دعویٰ جو کیا تھا الرضوی حنفی، آپ ایک کام کر، آپ اسکرین ریکارڈنگ شروع کر دیجئے۔ اب یہ بھائی کہہ رہے کہ آپ کی طرف سے آئی ڈی نہیں کر پا رہے، تو میں کیا بولوں ابھی؟ تو ابھی انہوں نے تو صاف منع کر دیا ہے کہ آپ کے یہاں سے نہیں بلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میری دوسری پوائنٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ جیسے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا کہ غیر اللہ سے مدد، اور اس کے بعد وسیلہ، وہ آپ کے نزدیک حرام ہے، ناجائز ہے، کیا ہے وہ؟ کیونکہ اس میں پوری ڈیٹیلز نہیں آئی ہے میرے پاس، بس یہی 2 پوائنٹ ہے، غیر اللہ سے مدد اور وسیلہ، تو وہ آپ کے نزدیک حرام ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، کیا ہے وہ؟ دیکھیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پہلی بات تو یہ ہے، عبداللہ بھائی کی طرف سے موضوع آیا ہے وسیلہ پر بات کرنی ہے۔ استیانت اور وسیلہ یہ دونوں الگ الگ موضوع ہیں۔ اگر آپ ابھی چاہتے ہیں استیانت پھر ابھی کر لیں گے، اگر آپ وسیلہ پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم وسیلہ پہ بات کریں گے، لیکن ایک وقت میں دونوں موضوع ممکن نہیں ہے۔ مجھے بتایا ہے وسیلہ، اور آپ کی طرف سے جو اسٹوری لگی ہے اس پر بھی موضوع وسیلہ لکھا گیا ہے، تو آج وسیلہ پر بات ہوگی، اگلے دن انشاءاللہ سیانت بھی غیر اللہ پر بات کر لینا۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ ہم نے حرام کہا ہے، ہم نے شرک کہا ہے، ایسا میں نے کوئی دعویٰ نہیں نہیں کیا نہیں ہے، نہیں مکمل طور نہیں پر نہیں وسیلہ پہ بات ہوگی۔ نہیں، دیکھیں میں نے یہ لفظ کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ نے حرام کہا یا آپ نے شرک کہا، یہ لفظ میرا کہیں نہیں۔ اگر ریکارڈنگ ہو رہی تو آپ ریکارڈنگ میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں نے کہا کہ بس میرے پاس جو پوائنٹس آئی وہ غیر اللہ سے مدد اور وسیلہ، تو میں نے سوال پوچھا یہ وسیلہ آپ کے نزدیک جائز حرام ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے؟ میں نے اب تک کوئی ایسی بات تو نہیں کہی ہے کہ آپ نے مجھ سے ایسا کہا یا آپ کی طرف سے ایسا جواب آیا۔ یہ الفاظ میرے نہیں تھے بھائی، یہ آپ نے شاید اپنی طرف سے لگا دیے مجھ پہ۔ اچھا یہ آپ نے عبداللہ بھائی پرائیویٹ کر رکھا ہے کیا کیا یہی یہ لائव؟ میٹنگ؟ نہیں ہاں نہیں پرائیویٹ نہیں ہے، پبلک ہے۔ ہاں ہاں، تو جو آنا ہے نا اس کو آنے دیجیے تاکہ جی جی لوگ سنیں۔ تو بھائی دیکھیں وسیلے کے تعلق سے ہم بات کریں گے، ہم اپنا دعویٰ رکھیں گے کہ ہم وسیلہ کو کیا سمجھتے ہیں اور کون کون سے وسائل کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ آپ مکمل دعویٰ رکھیں۔ اس میں کیا ہے نا، وقت کی قلت ہے، آپ نے بتایا وقت کم ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ جن وسیلہ پر ہمارا اختلاف ہے ہم اسی پر بات کریں گے، جس پر آپ بھی قائل ہیں ہم بھی قائل ہیں۔ کمنٹ بند کر دو بھائی سب کی، جس بھی آپ بھی قائل ہیں ہم بھی قائل ہیں، تو اس پر بحث کر کے دلائل دے کے مزید تو ہے اس گفتگو کو نہیں بڑھائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو اور ہمارا وسیلے پر کہاں اختلاف ہے، تو وہ اس اختلاف پر بات کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ اتفاق پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیا جائے گا، آپ بھی مانتے ہیں کہ اپنے نیک امال کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ کسی شخص سے دعا کرائی جا سکتی ہے۔ ان تینوں کے آپ انکاری نہیں ہیں، تو جہاں انکار نہیں وہاں پر بحث کرنے کی اور دلائل اور دعویٰ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو اختلاف ہے اس پر بحث کی جائے، اختلاف پر بات کریں گے، اتحاد پر نہیں۔ ہاں تو
वही तो मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह करे, चूंकि जो मुझ तक जो पॉइंट्स आए वो सिर्फ वसीला लिखा हुआ था, ठीक है। अब वहां पे कौन सा वसीला आपके नजदीक है क्या नहीं है, ना उन्होंने मुझे बताया और ना ही मैंने पूछा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप बिस्मिल्लाह कीजिए। अब जैसे आपने नामों का वसीला कहा, ठीक है, हम उसके मुनकिर नहीं है। इसके बाद जो दूसरा वसीला आपने नेक आमाल के लिए, ठीक है, तो नेक आमाल में आप क्या क्या समझते हैं? और जैसे कि नेक आमाल तो बहुत है, मगर वो आमाल कबूलियत के दर्जात पे पहुंची है कि नहीं आपकी, इसकी गारंटी क्या होगी? जैसे मैं नमाज पढ़ता मैंने हूँ, कहा ना कि हाँ, एक मिनट हजरत, एक मिनट। जैसे कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोजा रखता हूँ, ठीक है, तो मेरी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई, रोजा कबूल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मकबूल तब होगा जब मेरे आमाल कबूल होंगे। जी देखिए, इसको तो मैं बहुत आसान कर दूं जी ताकि हम मौजू की तरफ आए। ये इंसान जी कोई दावा कर ही नहीं सकता कि मेरे अमाल जो है वो मकबूल है। उसकी वजह यही है कि हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह जो तेरे इल्म में हमारा अमल मकबूल हो, उसके वसीले से तू दुआ करता है। उसकी वजह क्या है? अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया कि बनी इसराइल के जो 3 शख्स थे उनको गार में फंस गए, तो उन्होंने दावा नहीं किया था, उन्होंने भी यही दुआ की थी, अल्लाह जो तुझे हमारा अमल मकबूल हो उसका तुझसे वसीला लेता हूँ। तो भाई हम ये कहते हैं कि हमारी दुआ मकबूल हुई या नहीं हुई, हमारा ईमान है कि हर दुआ मोमिन की मकबूल होती है और जी उसका हर अमाल कबूल होता है, इल्ला ये कि अल्लाह के इल्म में वो चीज है। तो जी हम हुस्न जन की बिना पर दुआ करते हैं, जिसके जी आप इनकारी नहीं, जी। आपने कहा। हाँ, तो मैं इनकारी इसीलिए नहीं, आपने कहा ना कि नेक अमाल, तो ये सब भी तो रोजा नमाज भी नेक अमाल ही है। तो ये ऐसे अमाल है जिस पर हम अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं कि अल्लाह मेरी ये अमाल को कबूल करे, मगर इस पे हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि हमने उस नमाज का या रोजे का हक अदा किया। ठीक है, चले फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? जैसे कि आपने जो नेक देख, अमाल तो कहा। इसका इनकार किसने किया? इसका इनकार किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि ये जो रोजा, जक़ात, हज, ये तमाम चीजें फर्ज हैं। वसीला लेना आपके नजदीक फर्ज है? ना, तो फिर कैसे आप ये ज्वाइन कर रहे हैं आपने मुझसे ने, भाई साहब? आपने नेक अमल कहा ना, तो ये भी तो नेक अमल में से ही है ना। तो तो जो फर्ज चीज वो नेक अमल नहीं अमल होती? के अंदर हदीस में वजाहत आ गई ना, नवाफिल के फरमाए ना, जरिए इसलिए अल्लाह का तो कुर्ब मैंने कहा हासिल करो। बिस्मिल्लाह। हाँ, तो आप शुरू करें, आपको 5 मिनट है, आप अपना अरे मुकम्मल दावा पेश कर दें। मैं इख्तलाफ बता वसी देता हूँ क्या है, वसीला मेरे बीच में ना बोले, वस मैं इख्तलाफ नहीं, बताता हूँ सुने ना, क्या है। आप अभी आपने मुझसे कहा कि मैं शुरू करूं, तो खाली बस 30 सेकंड ले रहा हूँ, फिर बाद में आप बोलिएगा, मुकम्मल बोलिएगा, कोई मसला नहीं। जैसे कि आपने कहा, जैसे कि मैं वसीला, और आप वसीले को किस हिसाब से नाजायज कहते हैं, और मतलब अगर आप कहते नहीं कहते, हराम कहते नहीं कहते, वो आप पे डिपेंड करता। तो आप शुरू कीजिए, फिर इंशाल्लाह ताला इस पर जवाब होगा। हाँ, इसकी मैं वजाहत कर दूं। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना वसीले पर मुकम्मल दावा पेश कर दें कि आप वसीले को फर्ज मानते हैं, सुन्नत मानते हैं, मुस्तहब मानते हैं, मुस्तहसन मानते हैं। जब आप ये मुकम्मल दावा पेश कर देंगे, इंशाअल्लाह मैं जवाबी दावा पेश करूंगा। ठीक है, आप पेश अरे तो मेरे करें, भाई, दावा क्या है दावा आपका? दावा आपके तरफ से आया कि वसीले से रिलेटेड। तो आप किस एतबार से वसीले को लेते हैं? आप क्या वसीले को लेते, किस हिसाब से आप समझते हैं? आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं इस पे कुछ बोलूं। यानी आपके एतबार से वसीले पर आप मुद्दई नहीं है, हम मुद्दई इस हैं। पे अगर आप ये कह दें कि मैं मुद्दई नहीं हूं, तो मैं इंशाअल्लाह अपना दावा पेश करूं। तो आप दावा तो पेश कीजिए ना पहले। तो भाई, जब मेरी सारी चीजें आप मान चुके हैं, तो अब आप इख्तलाफ मैंने क्यों कर रहे मैंने हैं? क्या आपने खुद माना? कहा आप कि आप अल्लाह के आप नाम का वसीले को वसीला। देखें, नाजायज कहते, सुन ले, हराम कहते, आपने कुछ अभी कहा ही सुन नहीं तो ले अभी तक। भाई, आपने खुद तस्लीम किया, बेअदबी नहीं, आपने बेअदबी माना। नहीं, अरे सुन ले बेअदबी भाई, नहीं, बेअदबी नहीं। मैंने अब्दुल्ला भाई अभी तक कुछ कहा है? इनको बेअदबी कह रहे हैं, मैंने कुछ आप कहा? हसन आप नजवी देखिए, साहब, देखिए आप देखिए, मुंह मत खुलवाइए। देखिए, सुने ना, पूरा 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 रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हाँ देखिए, हाँ हाँ पूरा हाँ। पूरी बात रिकॉर्ड हो रही है। मैं आप कोई जी, सुने ना, मैं आप जी मैंने तमीज कोई से बेअदबी बात नहीं कर रहा कही। हूँ, तो सुन ले उन ले, ये अल्फाज मत बोले। मैंने बाअदब कहा है कि आपके नजदीक क्या जायज है, क्या हराम है, आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं इस पे बोलूँ ना। मैं वही तो आपसे कब से पूछ देखिए, रहा हूँ। सुन सुन ले और सुन ले में दो में फर्क है। एक सुन ले, मनून गुन्ना से बोला मैंने, सुन लीजिए, सुन लें, ये एक अदब का दायरा होता है, सुन लें। ठीक है, आप बोलिए, तो आप इसमें बोलिए, अगर आप मैं बोलिए, नून बोलिए, गुन्ना बोलिए, नहीं लगाऊंगा ना, आप तब बोलिए। ये बेअदबी होगी। यानी मैं कहूंगा सुन ले, तो ये बेअदबी होगी। तो आप अच्छा, मेरे आप बीच में ना बोले, बोलिए ना। ठीक है? आप खाइफ हो रहे हैं, मुझे पता, आप खाइफ हो रहे हैं। ये देखे, डर लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ, बोलिए रजा भाई, बोलिए, उस रजा पर भी आपको एतराज है, क्या रजा बोलूं भाई, अभी मैं? अब्दुल्ला भाई, इनसे कहिए ना, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? देखिए, अल्लाह के रसूल की हदीस है, जो कह कहा मार के हंसता है उसका दिल मुर्दार है। ये हंस रहे कह कहा मार के। अब्दुल्ला भाई, आगे पॉइंट पे। यार भाई मुस्कुराते मैं भाई, कब से कह मुझे रहा हैं हूँ, मौका सुन्नत है, देने मैं जैसे दो। मैं कब से कह रहा मुस्कुरा हूँ रहा कि हूँ। मैं बोलूं क्या? कहिए, मगर ये कुछ आप कह नहीं रहे भाई, टाइम कुछ रखिए, हसन भाई, अब्दुल्ला भाई, घुमा टाइम, रहे हसन अब्दुल्ला भाई, भाई, टाइम। सुनिए, खामोश। आपने बोला कि हम लोग शुरू करें, ठीक है? हमारे नजदीक ये फर्ज है
قرآن میں جب آیت آتی ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 65، اس میں لکھا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو اللہ سے ملنے کے لیے، تو یہ ہمارے نزدیک فرض ہے۔ اب فرض کام ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ کر کے دیکھتے ہیں۔ نماز کا طریقہ جو فرض ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، روزہ ہوا، جو بھی جتنی بھی چیز ہوئی زکات، سب کچھ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ چلیے وسیلہ دیکھیں گے تو وسیلہ میں حدیث جو ہم لوگ کو ملتی ہے اچھا تو اس عبداللہ میں بھائی، ہم لوگ کو معذرت حدیث جو چاہوں گا، ملتی ہے یہ زندہ یہ انسان دعویٰ کا وسیلہ نہیں عبداللہ بھائی، ہے۔ جی یہ جی، دعویٰ آپ ان کی طرف سے پیش کر رہے ہیں کیا؟ آپ کی طرف سے کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں نہیں آپ؟ تو عبداللہ بھائی مجھے کرنے دیجیے، انشاءاللہ میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ میں کیا مانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جو وسیلے کا ذکر کیا ہے کہ ہم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینے کے قائل ہیں، یہ بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی شخص سے دعا کرا سکتے ہیں وسیلے کے اعتبار سے، یہ بھی قائل ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے اپنے اعمال کی دعا بھی کر سکتے ہیں، جو بنی اسرائیل کا عمل بخاری سے میں پیش کیا ہوں، انہوں نے انکار نہیں کیا ہے۔ اب تینوں چیز میں جب اتحاد ہے، ہم دونوں تینوں متفق ہیں، تو اب اختلاف پر بات کی جائے نا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دعویٰ پیش کروں، جب میرا دعویٰ اور دلائل آپ نے مان لیے ہیں حسن صاحب، تو اب آپ کو چاہیے کہ اختلاف کی صورت بیان کرے، تو میں اختلاف کی صورت بیان کرتا ہوں۔ میں بتا دوں، ہم جس وسیلے کو بدعت ضلالہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی شخص نے وسیلہ نہیں لیا، اس لیے یہ بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس کا رزلٹ نکلتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے رسول نے فرمایا دین میں نیا ہو وہ بدعت ہے، بدترین ہے۔ تو نہ کسی صحابی نے رسول اللہ کا وسیلہ ان کی وفات کے بعد لیا، نہ کسی صحابیہ نے لیا۔ تو جب صحابی سے ثابت نہیں، رسول سے ثابت نہیں، قرآن سے ثابت نہیں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو جس پر میرا حکم نہ ہو وہ عمل بدعت ہے۔ اور بدعت ضلالہ کو میں نے تسلیم کیا ہے اس لیے کیونکہ ایک بھی حدیث بعد وفات رسول اللہ سے وسیلے کی ثابت نہیں ہے کسی صحابی سے۔ اگر یہ ایک حدیث مجھے صحیح سند سے دکھا دیں کہ کسی صحابی نے رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کا وسیلہ لیا ہو، اللہ کی قسم یہاں پر ابھی اعلانیہ رجوع کروں گا۔ ایک حدیث چلے بولے آپ کو دیتا ہوں، چائے پی لوں۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جیسے کہ بھائی انہوں نے یہ سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نے وسیلہ نہیں لیا، ٹھیک ہے، تو اب اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی نے وسیلہ لے لیا، ٹھیک ہے، کسی نے وسیلہ لے لیا تو وہ گنہگار ہو جائے گا یا پھر وہ ناجائز ہو جائے گا؟ اگر کسی ناجائز یا غلط کام کی اگر کوئی ثبوت یا کوئی ثابت ہو، یا کسی محدث نے کسی شرح میں لکھا ہو کہ بعد وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی نے وسیلہ لیا تو وہ ناجائز کے کیٹیگری میں آئے گا یا حرام کے کیٹیگری میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل کسی بھی شرح میں یہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اگر آپ نے وسیلہ لیا تو پھر آپ نے ناجائز کام کیا یا حرام کام کیا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ جو حرام کام ہے اس کی تشریح کھل کے ہے، ٹھیک ہے۔ حرام جو ہوتا ہے یا ناجائز ہوتا ہے اس کی تشریح کھل کے ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں جو زنا، شراب، سود وغیرہ کا جو ہے، مگر اس میں جتنے بھی نیک اعمال ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ جو یعنی رزق حلال بھی ہے، تو اس کی آپ کو تشریح نہیں ملے گی۔ بعد میں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو پھر کہیں پہ آپ کو محدثین کی آپ کو قول ملے گی، صحابہ کی قول ملیں گے، یا پھر آپ کو کوئی بزرگان دین کی اعمال میں سے لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، جیسے شرٹ اور پینٹ پر جو نماز ہے، ٹھیک ہے، کسی صحابہ نے نہیں پڑھا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حکم نہیں دیا اس پہ، اگر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس پہ آپ کیا شرعی حکم لگائیں گے؟ چونکہ جس طریقے سے بعد وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیا، تو اگر آپ اس سے یہ ڈائریکٹ لیتے ہیں کہ نہیں یہ ناجائز و حرام کی کیٹیگری میں، یا پھر آپ جو بھی کیٹیگری میں لیتے ہیں، تو پھر جو شرٹ پینٹ میں، جینس ٹی شرٹ میں جو آپ جو نمازیں جو پڑھ رہے ہیں، یہ کسی صحابی کا عمل تو نہیں ہے، یہ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تو نہیں ہے، تو پھر اس پہ آپ کیا حکم لگائیں گے؟ اور وسیلہ ایک منٹ اور وسیلے کے تعلق سے یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ،
सिफारिश पेश करो। तो अगर आप ये कहेंगे जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी बाहयात थे, उनकी वफात के बाद ये आयत मनसूख हो गई है, तो इसके मनसूख होने की क्या दलील देंगे आप? अब्दुल्ला भाई कितना टाइम बोलना है ये बता दीजिए। भाई 2 मिनट बोलना है, आप लगभग 4.5 मिनट बोल चुके हैं भाई ना? तो अब इससे पहले उन्होंने भी लंबा बोला था भाई। मुझे भी 4.5 इससे मिनट पहले थे, फिर उन्होंने भी उसके बाद लंबा ही बोला। 3-3 मिनट लेकिन रखिएगा। लेकिन ठीक है, रजा भाई, एक चीज बोलनी थी, जो आपने बोला था कि बात घुमाने वाली बात नहीं होगी, तो ये बात बहुत घुमा रहे हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं, चीजें मैंने नोट। मैंने एक मिसाल दिया, ठीक है, मैंने एक आप मिसाल टाइम दिया दें, और आप मैं दूसरा मैंने आयत इंशाल्लाह पेश इसकी किया। वजाहत कर देता हूँ। जी देखें, फरमाएं। मेरा वक्त शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक आज है वसीला। हमारा टॉपिक ये नहीं है कि पैंट और शर्ट पहनी जाए या नहीं, किसी दिन बात करेंगे इंशाल्लाह, हम साबित कर देंगे। हाँ, ये मुख्तसर सा ये है कि अगर इस्लामी हुदूद के दायरे में जो चीजें रसूलुल्लाह ने कपड़े के ताल्लुक से बताई हैं, वो टखने से ऊपर होनी चाहिए, सतर का ढका होना चाहिए, तो वो कपड़े बिल्कुल जायज हैं, जब तक उसकी मुमानात हुर्मत की दलील नहीं आ जाती इनके बकौल। अच्छा, इन्होंने एक बात कही कि किसी फकीह से दिखा दें। मैंने दुनिया के सबसे बड़े जो फकीह हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे दिखाया। मैंने हदीस क्यों पढ़ी? इसीलिए पढ़ी, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाते हैं रसूलुल्लाह, या अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए आयशा, जो मेरे इस अमल में हटकर कोई अमल करेगा तो अमल वो रद्द है, फहुव रद्दुन। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत को ये तालीम दी है कि जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से हटकर कोई अमल करेगा तो वो अमल मरदूद है, बिदत है। सही मुस्लिम में भी हदीस आई है, बुखारी की 2697 में भी है कि अम्मी आयशा से ये रिवायत है। आप जो है अब्दुल्ला भाई कमेंट को बंद कर दें, कमेंट को बंद कर दें ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने अल्लाह के रसूल से दिखाया कि हर वो काम जो दीन में इजाद कर लिया जाए खुद से, वो काम बिदत है। अब ये कहने किसी की तशरीह दिखाएं, अल्लाह के रसूल की तशरीह आने के बाद किसी की तशरीह की जरूरत नहीं है। बफर्ज मुहाल में आपको एक रिवायत इबारत बता देता हूँ कि अल्लामा बदरुद्दीन आइनी हनफी, ये तो आपके अकाबिर हैं, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी हनफी उम्दतुल कारी के अंदर ये वजाहत करते हैं, बिदत की तारीफ में कहते हैं कि जो सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल ना मिले, बदरुद्दीन आइनी हनफी, ये मेरा नहीं है, आपका हनफी है, और बहुत ही मोतमद आलिम है, मुज्तहिद है, मुहद्दिस है, कहता है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा ने और नबी ने वो काम ना किया हो, हम वो कर लें तो वो काम बिदत है। तो बिदत की तारीफ तो आपके जो है अल्लामा बदरुद्दीन हिंदी ये कर रहे हैं कि हर वो काम जो सहाबा के दौर में ना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो, वो अमल बिदत है। तो हमने तो आपके अल्लामा से दिखाया है। हमारा मुतालबा ये है, आपने ये मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारी जीत हुई। इनके बड़े बड़े आलिम मिंबर पर बैठकर ये खुतबा देते हैं कि वसीले की बाद वफात रिवायतें साबित हैं। आज पता नहीं क्या हो गया है हमारे हसन भाई को मेरे सामने रिवायत पेश करने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। इनके आलिम बड़े बड़े रोजाना तकरीर करते हैं, देखो बाद वफात वसीले की रिवायत। आज कह रहे हैं कि अगर सहाबा ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया तो क्या हुआ? कह दीजिए ना कि आपके पास रिवायत नहीं है, फिर वक्त इंशाअल्लाह हम बताएंगे कि नहीं किया तो वक्त क्या हुआ। ठीक है, नहीं है रिवायत है, अगर है तो वक्त पेश करें, नहीं है तो ये मैंने मत कुरान करें। मुकद्दस की जो आयत दी कि ऐ ईमान वालों, हाँ, तुम मैं अपनी उसकी जानों पर वजाहत जुल्म करता हूँ, कर लो मेरा तो वक्त मेरे है भाई। महबूब की बारगाह में कितना आओ। तो टाइम है इसका अब्दुल्ला रद्द में भाई आप अभी कौन मेरा? सी आयत लेके आ रहे हैं? कितना टाइम है? ये मंसूर कितना टाइम है अब्दुल्ला हो भाई? गया, 2 मिनट 3 मिनट से ऊपर हो गया। तो नहीं, आप ये कौन सी 4.5 मिनट बोलना है मुझे। तो, आप नहीं अरे बताएंगे, अब्दुल्ला कुछ भाई भी बताएंगे। अब्दुल्ला भाई कुछ टाइम भी हुआ? टाइम हुआ मेरा? अभी अभी देखे अभी 3 मिनट पे मेरे बीच में बात हुई बोल थी। गए। अभी 3 मिनट पे बात साढ़े हुई थी। चार मिनट, साढ़े अच्छा चार मिनट ठीक है, चले बोले 1 मिनट और ले लीजिए, चले कोई मसला नहीं, जो माजरत। इन्होंने आयत पेश की है, हम्म, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, तो हम्म। इसमें इन्होंने मुझसे एक मुतालबा भी किया था अब्दुल्ला भाई आपके सामने कि किसी फकीह से मुझे दिखाइए कि वसीला लेना ये बाद नाजायज है। तो आपने कहा कि ये आयत क्या मनसूख हो गई। पहली बात तो इस आयत में कहीं पर भी वसीले का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी वसीले का जिक्र नहीं है। अब मैं भी आपसे कहूंगा, किसी मुहद्दिस, किसी मुफक्किर, किसी मुहद्दिस या किसी फकीह से या किसी सहाबी से इस आयत की तशरीह में अमल करते हुए दिखा दें कि किसी सहाबी ने इस आयत पर अमल किया हो बाद वफात। किसी सहाबी का अमल ना करना हमारे लिए दलील है और अमल करना भी दलील है। किसी सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इस आयत पे अमल करते हुए अपनी जानों पर जुल्म किया और नबी की कब्र पे गए हो तो दिखा दें, तभी तो मानी जाएगी। तफसीर तब होती है ना कि जो तफसीर बिल रिवाया हो, तफसीर बिल राय नहीं मानेंगे। तो किसी सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस आयत पर अमल किया हो और नबी की कब्र पे गए हो, एक दलील पेश कर दें।
आज तो पसीने छुड़ा दूंगा इंशाल्लाह, आप दलील पेश करें। अभी अभी चलो अब्दुल भाई पसीना को 3 छूटेगा, मिनट दे दें। अभी पसीना छूटेगा। तो अब इसका मतलब अगर किसी सहाबी ने कुरान मुकद्दस के जिस आयत पे अमल नहीं किया, ठीक है, आपके मुताबिक, तो क्या वो आयत मनसूख है? ये आप कह रहे कि वसीला कहाँ है? वसीला इसी को तो कहते हैं कि जब अपने जान पे जुल्म कर लो तो नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ, और नबी के बारगाह में हाजिर हो जाओ, उनसे सिफारिश करो, तब अपने अपने रब को तौबा कबूल करने वाला पाओगे। तो हम इसी को तो वसीला कह रहे हैं ना मियां। आप वसीले का क्या डेफिनेशन लेते हो आपकी ऊपर है, मगर हम वसीले का डेफिनेशन आपके हिसाब से तो नहीं समझ रहे। हम तो इतना कह रहे हैं कि अगर तुम अपने जानों पे जुल्म कर लो, नबी के बारगाह में जो ये कुरान हुक्म दे रहा है, तो आप कुरान के इस हुक्म से आप इनकार कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात ये, आप ये कहते हैं कि किसी सहाबी ने ये अमल नहीं किया, तो किसी और आपके नजदीक किसी सहाबी ने अमल किया तभी वो कुरान की आयत है, वरना वो मनसूख हो चुकी है, जबकि उसके मनसूख होने की कोई दूसरी दलाल आपके पास भी नहीं है। आपने बस इतना कह दिया और कि किसी सहाबी ने इस पे अमल नहीं किया। ठीक है, जब किसी सहाबी ने अमल नहीं किया तो क्या वो कुरान शरीफ का हिस्सा नहीं है? क्या वो रब्बे करीम के फरमान नहीं है? तो क्या वो आयत मनसूख हो चुकी है? ये सवाल खड़ा हो जाएगा मियाँ। और दूसरी चीज ये रहा बिदत, ठीक है, तो हर बिदत जो होती है ना वो गुमराही नहीं होती है, हर बिदत गुमराही नहीं होती। आप ये कहां से साबित करके हर बिदत गुमराही होती है मियाँ? बिदत के किस्म कितने हैं? हर बिदत गुमराही हो जाएगी तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आप जिस तरीके से नमाज जैसे लिबास, अगर मैं आपने जैसा घुमाया, आपने एग्जाम्पल दिया, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे जो लिबास का जो मसला है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है अमामा शरीफ, वो अमामा कहाँ चला गया? अरबी के सरों से। जो आज वहां पे जो मक्का में जो इमाम है, वो सर पे अमामा क्यों नहीं बांधते? क्या वो सुन्नत, वो लिबास बदल दिए? ये जो आप जो ओढ़ते हो, फिर वही मसला आ जाएगा ना, किसी सहाबी ने वो किया तो ये लिबास की जो सुन्नत रसूल ने नहीं सिखाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत रसूल जो था, आपने तो उसको तर्क कर दिया। अगर हम जब ये पैंट शर्ट पे बात करते तो आपने अच्छी खासी तफसीर दी, और बिद्दत की बात आप लेकर आ गए। तो इसी पर हम ये कहेंगे कि आप जो नमाज में जो रसूलुल्लाह अमामा बांधा करते थे, वो सुन्नत को आपने तर्क कर दिया। उसको तर्क करने के बाद आपने जो दुपट्टा ले लिया सर पे, ये आप कहाँ से साबित कर रहे हैं? टाइम आपका यही समाप्त होता है। अच्छा, साढ़े 4.5 मिनट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, साढ़े 3 चार मिनट मिनट की आप बात। रुके थे, अब 2 मिनट का होगा कि नहीं होगा? अभी तो 3 मिनट बोल रहे थे, अभी तो 3 मिनट बोल रहे थे नहीं, भाई। 1 मिनट और ले लें, कोई बात नहीं, करने देंगे, नहीं दे दे 1 मिनट। चले अब शुरू करें। चले, मैंने तो ये कह दिया ना कि जैसे कि कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप म्यूट कर दें। मुकद्दस की जो आयत मैंने दिया, आपने कहा कि किसी सहाबी ने इस पे अमल नहीं किया, तो आपके नजदीक फिर वो मनसूख हो जाना चाहिए, वो कुरान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर कोई इस पे अमल कर दे तो फिर वो गुनहगार हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने सूरह निसा की आयत नंबर 64 पेश की कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो तुम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आओ और उनसे माफी तलब करो, और वो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ करे तो अल्लाह को तुम गफूर और रहीम पाओगे। ये लफ्ज बता रहा है जाऊका का लफ्ज जो है ये वाज़े करता है कि जब तुम आओ, कबर की बात नहीं है, नबी सलाम की हयात में ही जा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जब भी तुम जुल्म कर लो नबी की बारगाह में आओ। यहाँ पर तो कब्र का जिक्र नहीं है और ना ही वसीले का जिक्र है। अगर ये कहते हैं कि आयत मनसूख नहीं हुई तो इससे अगली आयत में आपका जो है रद्द कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 65 में, अल्लाह फरमाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब की कसम, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, ए महबूब, ये कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुझे अपने हर फैसले में हाकिम ना बना लें। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह ने ये वजाहत की है कि तुम काफिर हो जाओगे अगर नबी का फैसला नहीं अपनाओगे। तो आज ये जो निकाह करते हैं तो मौलाना को बुलाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में क्यों नहीं जाते, उनसे फैसला क्यों नहीं कराते? आज इनका कोई केस हो जाता है तो ये पुलिस के पास क्यों जाते हैं, नबी से फैसला क्यों नहीं कराते? आज निकाह के कोई मसाइल होते हैं तो नबी से फैसला क्यों नहीं लेते? आज ये घर के किसी मसले में कोई चीज आती है तो बड़े के पास जाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम से फैसला क्यों नहीं लेते? जबकि अल्लाह फरमा रहा है तुम कामिल मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक कि हर फैसले में अपने नबी को अपना हाकिम ना बना लो। तो आज इन्होंने कचहरी को हाकिम क्यों बनाया? आज इन्होंने सरपंच को हाकिम क्यों बनाया? आज इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को छोड़कर दीगर को हाकिम बनाया, तो ये तो काफिर हो गए नबी अल्लाह के कुरान के मुताबिक। बात सीधी सी है कि वहां पर जो बात हो रही है वो वसीला है ही नहीं। किस मुफस्सिर ने, किस मुहक्किक ने वहां पर वसीला मुराद लिया? एक आयत पेश करे, एक इबारत पेश करे, किसी मुहद्दिस का हवाला नहीं दिया, कह रहा कि यही वसीला है।
اگر یہ وسیلہ ہے تو وسیلے کا معنی آپ کو آتا ہی نہیں. وسیلے کا معنی ہوتا ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنا. کس نے یہ معنی کیا ہے کہ جو نبی کے پاس آ جائے یہ وسیلہ ہے؟ عجیب بندہ ہے. کسی مفسر کا حوالہ دو. آپ کی ذاتی رائے کیوں مانوں؟ جیسا بھی آپ نے کہا کہ میں ذاتی رائے نہیں مانتا, تو میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ کس محدث نے اس آیت سے وسیلہ مراد لیا ہے؟ ایک عبارت پیش کریں. اپنی ذاتی رائے پیش نہیں کرنا, آپ کے پاس ٹائم ہے. اور میں نے جو اگلی آیت پیش کی ہے نا, اس پہ جواب دینا کہ جب نبی کے تعلق سے یہ وضاحت آ گئی کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی کو اپنے ہر فیصلے میں حاکم نہ بنا لو, تو آج آپ کیوں انسانوں سے فیصلہ کراتے, نبی علیہ السلام سے فیصلہ کیوں نہیں کراتے؟ اگر آپ کا جو جواب ہوگا آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. نہیں ہوئی تو عمل کیوں نہیں ہے؟ حق کی. ٹھیک ہے, جواب دوں؟ ٹھیک ہے, سنیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے نزدیک, جیسے کہا کہ اس وقت کے لیے منسوخ ہو گیا, تو آپ کے نزدیک کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے یا ختم ہو گئے, یا یہ آپ کا عقیدہ ہو چکا ہے؟ اگر یہ ہر فیصلہ اور اس پہ یہ منسوخ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جانے کا حکم صرف اس وقت تھا, اب نہیں تھا, چونکہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے یا پھر جو بھی ہو ان کا وسیلہ نہیں لے سکتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ بھی عقیدہ ہوگا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سن نہیں سکتے, یا وہ جواب نہیں دے سکتے, کیا وہ دیکھ نہیں سکتے؟ ٹھیک ہے. اور اسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو صرف آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ تمام آل محمد پر بات کریں گے, چونکہ آپ جب نماز میں نبی اور آل نبی پہ جب درود بھیجتے ہیں نا, تو ظاہر سی بات ہے آپ سلام بھیجتے اتحیات میں بیٹھ کر, تو جب آپ سلام بھیجتے ہیں تو نبی کریم سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. آپ جب والہ عباد اللہ صالحین کہتے تو تمام صالحین پر بھی سلام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانا, تو اس کا مطلب ہم رسول کو زندہ مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کب مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین, ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں. آپ کے پہلے سوال کا یہ جواب ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ وہ اس وقت کے لیے تھا, اب کے لیے نہیں ہے, یا آیت منسوخ ہو گئی ہے, تو ہم تو یہ کہتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے, ہماری سنتے بھی ہیں, بالکل ہیں. اور اس کی یہ ہے کہ جیسے کہ اگر معاذ اللہ رب العالمین اگر آپ نبی پر سلام بھیجتے ہیں تو کیا نبی جواب نہیں دیتے؟ اگر جواب نہیں دیتے تو معاذ اللہ رب العالمین سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. جس نے واجب کو جان بوجھ کے ترک کیا اس پہ کیا حکم لگتا ہے؟ تو پھر آپ اس پہ کیا حکم لگائیں گے؟ اور اگر آپ اس پہ یہ جواب دیں گے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں, تو پھر آل محمد کے بارگاہ میں بھی فرشتے جاتے ہیں, اور آل محمد تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہے, تو یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام مہدی تک سبھی کے پاس فرشتے جاتے ہیں. تو وسیلے کا یہ مطلب ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کا بھی وسیلہ دیتے ہیں, آپ کے ذات کا بھی وسیلہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم درود پاک پڑھ کے بھی اسے وسیلہ بناتے ہیں. اس کے بعد ہم اللہ کے نیک بندوں کا بھی وسیلہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ وسیلے کا جو حکم ہے اور مددگار کا جو حکم ہے, اور اس کے بعد کوئی بھی جو نیک بندہ ہے نا, جیسے آپ نے کہا صالحین, تو صالحین کبھی بھی اپنے آپ کو صالحین نہیں کہے گا, چونکہ اگر کوئی اپنے آپ کا دعوے دار ہو جائے, جیسے کہ اس کے پہلے آپ نے کہا کہ کوئی بھی انسان اس وقت اتنا دعوے دار نہیں کہ اس کی نماز قبول ہو جائے گی, تو وہ کیسے دعوے دار کر سکتا ہے کہ وہ صالحین بندے میں سے شمار ہے, یعنی اللہ کے نیک بندوں میں سے شمار ہے؟ تو اس کا جواب یہی کہ جب وہ دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں تو پھر ان کی صالحیت یعنی وہ اللہ کے صالحین بندے ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جو وسیلہ جو لیتے ہیں نا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لیتے ہیں, درود پاک کا لیتے ہیں, ان پہ درود بھیج کے لیتے ہیں, آل محمد اہل بیت و صحابہ کا بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے, جیسے کہ میں نے جو آیت بھی ایک منٹ, آپ ٹائم سے 3 منٹ 10 سیکنڈ آپ نے زیادہ بول دیا, مطلب 1 منٹ 10 سیکنڈ زیادہ آپ نے بول دیا ہے. میں نے کہا اب آپ چپ ہوں گے. ٹھیک ہے, چلیں. جی, تو مائک تو سب کو کھلا ہوا ہے بھائی. ہاں صحیح ہے. میں یہ کہہ رہا تھا میں مائک اوپن نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ اوپر چلا گیا تھا نا, تو وہاں سے جو ہے کوئی مسئلہ دب ہی نہیں رہا تھا بٹن. کوئی اب مسئلہ نہیں, مت ہوتا لینا ہے. ان کو, ٹھیک ہے, ورنہ اوپن نہیں کر پاؤں گا. اب یہ 3 ہی رہنے دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے 5 منٹ بولا ہے, اصول پہ قائم رہے عبداللہ بھائی, صرف 2 منٹ دیں. میں پھر بھی
जो है अपनी बात को मुकम्मल करूं और अगली बार में 2 मिनट देना, क्योंकि लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। देखें, इन्होंने मौजू छेड़ दिया है। कभी ये बिदत पे भाग रहे हैं, कभी ये जा रहे हैं हयातुन नबी पे, कभी जा रहे हैं सुन्ने पर, कभी जा रहे हैं सलाम पर। हमारा मौजू आज वसीला है। हसन साहब, जो भी आप, हसन रजवी साहब, आपको वसीला पे बात करनी है, किसी और मौजू पर नहीं जाने दूंगा। आपने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जिंदा मानते हैं, फिर तो और ज्यादा आप फंस गए। अगर आप रसूलुल्लाह को जिंदा मानते हैं तो अल्लाह यही तो फरमा रहा है कुरान करीम में कि तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर फैसले में अपना हाकिम ना बना लो। क्या ईमान की बाजी, फला व रब्बी का, नहीं है तेरे रब की कसम, हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि तुझे हाकिम ना बना ले अपने हर इख्तिलाफ में। तो जनाब मन, अगर अल्लाह के रसूल जिंदा हैं तो आप क्यों कोर्ट के पास जाते हैं? क्यों आप सरपंच के पास मसला पेश करते हैं? क्यों निकाह के मामलात में आप रिश्तेदारों में जाते हैं? क्यों घर का सरपंच बनाते हैं? क्या रसूलुल्लाह ने निकाह के बारे में नहीं बताया? फैसल क्यों नहीं बनाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं बुलाया? नबी अलैहि सलाम से साहबा इकराम जब भी कोई मसला आता तो पेश करते, यहाँ तक कि साहबा की हड्डी पिंडली टूट जाती तो नबी के पास आते और नबी उस पर हाथ फेरते और अल्लाह तबारक व तआला नबी के इस मोजज़ात से साहबा को ठीक कर देता। इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, जबकि उम्मत के सबसे बड़े फकीह हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मन काना यअबुदु मोहम्मद फइन्ना मोहम्मदन कद मात, यानी जो नबी अलैहि सलाम की इबादत करता है तो जान ले फइन्ना मोहम्मदन कद मात, नबी अलैहि सलाम मर चुके हैं। मैं नहीं कह रहा, अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कद मात, मात का लफ्ज है, मौत आ गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये कह रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह को जिंदा मानते हैं। आपकी मानू या अबू बकर सिद्दीक की, जो नबी अलैहिस्सलाम के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल तरीन हस्ती हैं? वही फरमा रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की जो इबादत करता है तो जान ले फइन्ना मुहम्मदन कद मात। क्या हसन साहब आपको पसीने आ रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? हम आपके सामने हदीस से पेश कर रहे हैं, हम आपके सामने कुरान पेश कर रहे हैं, ना आपने किसी अकाबिर का हवाला दिया, ना किसी असागिर का हवाला दिया, ना किसी मुहद्दिस का हवाला दिया, ना किसी मुफक्किर का हवाला दिया, ना किसी मुहद्दिस के बाद मुहद्दिस के मुस्तहिद का नहीं हवाला दिया, किसी के भी नहीं, ना अबू हनीफा का हवाला दिया, एक हवाला पेश नहीं किया। हमने कहा नबी अलैहिस्सलाम जिंदा हैं तो फैसला क्यों कराते हो दूसरे से? नबी अलैहिस्सलाम से क्यों नहीं कराते? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है तो जो नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा मानता था वो सहाबी हो जाता था। तो आज सहाबी हैं आप नबी पे ईमान लाते हैं तो आप सहाबी तो नहीं है। क्यों नहीं है? नबी तो जिंदा है, जब मरहला नहीं बदला तो जिंदा हुए। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम को मौत आ गई है, आप कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जिंदा मानते हैं। इमाम ज़हाबी सियर आलमिन नुबला में और इमाम इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बरज़ख में जिंदा है। तो ये तो अहले हदीस का ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम बरज़ख में जिंदा है। आपने कहा नबी अलैहिस्सलाम को हम सलाम भेजते हैं तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि वला तस्मीउल मौत मन फिल कुबूर, के जो कब्र के अंदर है आप उनको नहीं सुना सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है, मगर जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में सुनते हैं, इसकी दलील आपको पेश करनी है, आप दलील पेश नहीं किए हैं। आपने कहा हम सलाम करते हैं तो सुनते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कोई बंदा अगर सलाम करता है तो वो ये जरूरी नहीं कि सुने। मिसाल के तौर पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अस्वद को चूमा, उससे कलाम किया और कहा कि इन्नी आलमु इन्नका हजरुन, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, तो उसको सिर्फ इसलिए चूम रहा हूँ क्योंकि तुझे रसूलुल्लाह ने चूमा है। पता क्या चला? जो बेजान है, जो कलाम नहीं करता, उससे भी बातें कर रहे हैं, वो तो सुनता नहीं है ना पत्थर, क्यों बात कर रहे हैं? तो पता चला कि जिससे कलाम किया जाता है जरूरी नहीं वो सुने। आपसे देखिए, मेरा 30 सेकंड लूंगा, गुजारिश है ये तस्लीम करें कि वसीले पर इनके पास कोई रिवायत नहीं है। अब्दुल्ला भाई, अगर इनके पास कोई रिवायत नहीं है तो तस्लीम कर ले, हम रसूलुल्लाह से दिखा चुके हैं कि हर वो काम, इनके घर से दिखा चुके हैं, हर वो काम जिस पर कुरान हदीस ना हो वो सवाब की नीयत से हम कर ले वो बिदअत है। तो इनके पास कोई दलील नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मौक़िफ़ साबित हो। अब 2 मिनट रखिएगा, लंबी हो रही है 2 मिनट, और मौजू पर रहिए भाई, मौजू। ठीक है, इस पे मैं जवाब दे देता हूँ कि जैसे कि जंग बद्र में जब अबू जहल मारा, जब उसको कब्र में डाला गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमाया, क्या तुमने अंजाम नहीं देखा? अब ये सवाल खड़ा होता है, कभी भी बेजान चीज से सवाल नहीं पूछी जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल को जब गाड़ दिया गया था, जब उसको कत्ल कर दिया गया था, तब काफिर से बात कर रहे हैं और फरमा रहे कि देखा तुमने इसका अंजाम क्या हुआ। ये सवाल हजरत फारूक आजम ने तो खाली कहा था ना कि हजरत हम इसलिए चूमते चूंकि अल्लाह के रसूल ने चूमा।
ہے نا. مگر یہاں پہ ابو جہل سے مخاطب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ نے جنگ بدر نہیں پڑھی ہے؟ جنگ بدر میں اللہ کے رسول یہی ارشاد فرمایا کہ ابو جہل کے قبر پہ کیا تم نے اس کا انجام نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے. دوسری بات، اور یہ لازم نہیں ہے کہ اگر جب بندہ سلام سن نہیں سکتا تو پھر نماز میں کیا نماز کا آپ مذاق بناتے ہو؟ جب پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو محمد اور آل محمد پہ جو آپ سلام جو بھیجتے ہو تو معاذ اللہ رب العالمین اس میں آپ مذاق اڑاتے ہو. کہ اگر نہیں سن سکتے، جب نہیں سن سکتے، آپ کا مکمل عقیدہ اور یقین ہو چکا ہے کہ نہیں سن سکتے، پھر آپ اس چیز کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ آپ نماز میں جھوٹ باندھتے ہو. اب تو آپ سر بھی پکڑو گے، پیر بھی پکڑو گے. یعنی آپ نماز میں اپنی جھوٹ باندھ دیا بہت بڑا کہ نبی سن نہیں سکتے. ابھی آپ نے کہا کہ نبی معاذ اللہ رب العالمین مر چکے، ختم ہو چکے. اور جو موت کا جو ہے نا، وہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مذاق چکھنا ہے. یہ تمام 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 مسلمانوں کا عقیدہ ہے، موت کا مذاق. ٹائم ہو گیا ہے. 2 منٹ ہو 2 گئے. منٹ الحمد اچھا للہ سر، رب ایکسٹرا نہیں العالمین. ملے گا. آپ بھٹکیے مت، جو ٹاپک ہے اس سے رہیے. ابھی آپ پھر ارے چلے گئے میرے بھائی، ہم، سلام وسیلے پہ پہ آپ آ بات ہے. گئے جب پھر رسول وہاں آ ہم گئے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیتے ہیں، آپ انہیں مردہ ہی کہہ دے رہے ہیں. سر آپ اس یہ نبی کو مردہ ہی جو میں کہہ نے دے رہے پکڑا ہے نا، جس یہ کا سر جو کلمہ میں نے پڑھ کے پکڑا ہے آپ نا، زندہ ہے، جن کا. ایک منٹ رکے نا، ایک منٹ میرا رکے نا. وقت ہے، میرا آپ وقت ہے، آپ مجھے بولنے دیجیے. آپ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ. الحمد آپ للہ. بھی بول رہے تھے اور آپ بھی بول رہے تھے، تو دونوں کا جواب تو مجھے اکیلے کو دینا نا. میرے بندے کو نہیں، تو وہ آپ تو نے ایڈ نہیں کی ہے. ٹائم میں بتا کہاں رہے بول رہا ہوں؟ ہیں، وہ تو ٹائم میں بتا نے رہے بول نہیں کیا. بیچ میں اسٹارٹنگ میں آپ کو 20 سیکنڈ مل جائے گا، کچھ ہو جائے گا. آپ نے 30 سیکنڈ تو دیا تھا، 30 سیکنڈ ہمیں بھی دے دیجیے. ہم تو جی بعد لے میں لیجیے کہہ رہے ہیں. لیجیے. ہم لوگ ٹھیک سلفی ہے. ہیں، لوگوں کو دان میں دیتے رہتے ہیں ایسے ہی. جی لیجیے لیجیے. جو آپ کیا نے کیا کیا بات کیا بیان کی ہے نا ابھی، جو آپ نے ابھی بیان کی ہے وہ دوبارہ سے 30 سیکنڈ میں دوبارہ بیان کر دیں. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مر کے ختم ہو چکے، سب مسئلہ ہی ختم ہو چکا ہے اب آپ کے نزدیک، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی سلام نہیں سنتے ہیں. اس کا مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ بھی نہیں رہے. اس کا مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اور دوسری چیز کیا اگر نبی کی وفات کے بعد کیا نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت اور رسالت ہے؟ یہ بھی سوال کھڑا ہو جائے گا نا، چونکہ حضرت آدم سے لے کے ٹھیک ہے، حضرت آپ کے عیسیٰ علیہ 30 السلام. سیکنڈ بس ہو بھائی، گئے. بس دیکھیں، آپ نے چلے پوری. بات یہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بسم مسئلہ اللہ نہیں. جی الرحمن الرحیم، بات یہ ہے کہ میں نے کہا کبھی یہ حیات النبی پہ جا رہے ہیں، کبھی بدعت پہ، کبھی سلام سنتے ہیں، کبھی قبر والے سنتے ہیں، کبھی نبی زندہ ہے، کبھی مردہ ہے. بھائی کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ وسیلے پہ کیوں نہیں آ رہے؟ ہم نے کہا ایک وسیلہ روایت پیش رسول کریں ابھی کہ تک میرے بیچ میں کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ میرے بیچ میں کیوں اب بول رہے سوال کھڑا کر ہیں؟ دیں، ہم آپ نے جواب جتنے بھی نہیں دے رہے. مطالبے کیے، آپ اپنی باری میں دیجیے گا نا. اب جواب نہیں آپ دے اپنی رہے. باری میں میں نے دیجیے جو گا. سوال آپ کیا اپنی اب اس کا باری میں جواب دیجیے گا. دیجیے. میں نے اپنا جواب ہاں، رکھا. ابھی میں دے رہا نے ہوں تو آپ یہ کو. نہیں کہا کہ آپ یہاں کیوں جا رہے ہو، وہاں کیوں جا رہے ہیں. آپ کے ایک سوال کا جواب میں نے دیا ہے، وہ نہیں عوام فیصلہ کرے دیا گی ہے نا آپ جب نے ریکارڈنگ صرف جائے سوال گی. کھڑا کیا ہے. آپ بیچ میں آپ کیوں نے بول رہے صرف ہیں سوال عبداللہ کھڑا بھائی؟ کیا ہے. بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ رکیں گے تھوڑا دیر، رکیے تو ہے نا بھیا، بولیے. چلے بولے تو سوال. دیکھیں، انہوں نے ایک موضوع منٹ سے، سوال کھڑا نہ کرے، جواب دیجیے. آپ بولیے، سوال کھڑا نہ بھائی کیجیے. آپ دیکھیں، رکیے وہ تمام سمجھ تمام تمام چیزیں تمام لوگ سن رہے ہیں. ایک بھی انہوں نے کوئی حوالہ مفسر کا دیا؟ میں نے مانگا تھا، یہ مجھ سے کہہ رہے کہ میں جواب نہیں دیا. میں نے کہا محقق، مفسر، محدث، مجتہد کسی کا حوالہ تو دو. کسی صحابی کا حوالہ نہیں دیا، نہ محدث. اپنی تشریح کر رہے ہیں. اچھا، انہوں نے ایک حدیث پیش کی ہے خلیف بدر کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول کفار مکہ کی لاشوں سے مخاطب ہوئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مردے سنتے ہیں؟ کیا مردے سنتے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا کہ اس وقت تم سے بہتر سن رہے ہیں. پہلی بات تو انہیں عربی سے میں سمجھتا ہوں کہ اصول نہیں پتا، اور پھر بھی میں آسان کر دوں. یہ حضرت عمر کا جملہ ہی بتا رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے سکھا رکھا تھا صحابہ کو کہ مردے نہیں سنتے. تبھی تو وہ سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول کیا مردے سنتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ نبی نے تو ہم کو پتا ہے مردے سنتے ہی نہیں ہیں. تو آج نبی علیہ السلام مردوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں سوال کر لوں اللہ کے رسول کیا مردے سنتے ہیں. اس کی تشریح کرتے ہوئے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے والد کو دونوں کو یہاں غلطی لگی ہے. جس طریقے سے آپ کے باپ کو غلطی لگی تھی حضرت عمر کو، وہاں انہوں نے سننے سے مراد جو تھا رسول اللہ کی، وہ سننے سے مراد یعلمون تھا، یعنی جان لیا. سننے سے مراد حقیقی سننا نہیں تھا، یعنی جان لیا. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ امت کی فقیہ. غور کریں، میں ہنس رہے بتائیے امی عائشہ کی بات پہ. امی عائشہ فرما رہی ہے کہ وہاں سننے سے مراد کیا تھا؟ جاننا. یعنی یہ جان چکے ہیں کفار مکہ. کیونکہ آپ دیکھیں حضرت عمر اس دنیا میں ہے، بس 30 سیکنڈ لوں گا. حضرت عمر اس دنیا میں ہے،
है ना, और वो कुफार मक्के दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। यानी हजरत उमर ने सिर्फ एक दुनिया देखी है, उन्होंने दूसरी दुनिया भी जान ली। इसलिए तो हजरत अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए उमर ये तुझसे बेहतर जानते हैं। यानी तूने एक दुनिया देखी, उन्होंने दोनों जहान देख लिए हैं। और इसकी वजाहत किसने की? अम्मी आयशा ने। कहा वहाँ समियोन से मुराद यालमून था, यानी सुनने से मुराद था जानना। कौन कह रही है? उम्मत की फकीहा। तो इनके बाद तो कोई राय नहीं रखती। और ये भी उसूल है कि जब किसी मतलब पहले मुजारे पर लाम दाखिल हो जाता है तो वो खास माना होता है, खास आज के 30 वक्त। सेकंड अच्छा मुकम्मल मैं हो सिर्फ चुका है। 30 सेकंड लूंगा, हाँ 30 सेकंड लूंगा मैं। अभी कहाँ हुए मुकम्मल भाई? वो बोलेंगे, आप क्यों बोल रहे हैं? इन्होंने देखे निस्बत कहाँ से दी अब्दुल्ला भाई, देखिए निस्बत कहाँ से दी। वहां इन्होंने सुनने की, नबी अलैहिस्सलाम को मुराद कहाँ ले रहे? देखिए नबी की सलाम की निस्बत, इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। और कहाँ से मुराद ली? कुफ्फार मक्का की लाशों से। नाउज़ बिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनने की निस्बत कुफ्फार मक्का से ले रहा है बंदा। ये इसकी हैसियत है जी। हो गया? देखिए आप यहाँ पे नाइंसाफी कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था मेरे एक बंदे को रखिएगा। मैं आपको 2 बार इशारा भी किया, शायद मगर आप मसरूफ थे, आपने नाइंसाफी की है वक्त में। ठीक है, खैर अब मैं बोलता हूँ। यहाँ पर सुनना और सुनाने से मुराद नहीं था। जो अल्लाह के रसूल ने अबू जहल के कब्र के तरफ मुखातिब होके कहा था, क्या तुमने अंजाम नहीं देखा? ठीक है, यहाँ पे जो हजरत झूठ बोल फारूक रहे हैं, आजम रजी अल्लाह, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं अब्दुल्ला भाई, झूठ बोल रहे हैं। कुछ कब्र का लफ्ज कहाँ है उस हदीस में बोला दिखाएं? मैं कुछ झूठ बोला ना बोले हदीस में कब्र का आपके लफ्ज। बीच आप में भी बोला, बोले थे मेरे बीच में, आपके आप बीच भी में बोले थे बोला कब्र मैं, का लफ्ज आपके दिखाइए, बीच में बोला मैं। कब्र का लफ्ज अब दिखाइए। तो अब्दुल्ला भाई इनसे अबू जहल के, ये कब्र का लफ्ज दिखाएं, एक मिनट इनसे तो अबू जहल को जिंदे ये जिंदे कब्र में का कहा लफ्ज था। दिखाएं, हदीस के अबू अंदर अबू कब्र का जहल लफ्ज को दिखाएं। जिंदे में कहा था। अबू जहल को कब कहा आपने था रसूल कब्र का करीम लफ्ज ने? बोला, अबू कब्र का जहल को लफ्ज कब? अपनी तरफ से अरे हाँ तशरीह की। सुने ना, अल्लाह अभी के अभी अभी रसूल यहीं पे की यहीं पे वजाहत आप के अटक गए ना। मुकाबले में तो अबू अपनी जहल को तशरीह जिंदे पेश में कर कहा रहे था। हैं। कब्र अबू में जहल कहा को था, जिंदे में कहा था कि मुर्दे में कब्र कहा है था? हदीस में, अल्लाह के हदीस में रसूल ने कब्र का लफ्ज अबू है। जहल को कब कहा हाँ था? या ना? फंस चुके कब्र हो, का लफ्ज है, फंस चुके कब्र हो। का लफ्ज है। अल्लाह के देखो रसूल ने झूठ अबू बोला जहल को नबी कब कहा था? मैं आपसे अलैहिस्सलाम की पूछ रहा कब्र हूँ। से, पूरा कब्र मुकम्मल के हदीस लफ्ज दिया ना था। आपने। अब यहीं मैं से जब कहता हूँ कब्र कि में जिंदा है, कब्र में अबू आदमी बकर, सुनता मैं है तो कहता हूँ फंस कि चुके हो अबू आप फंस जहल चुके की हो मियाँ। लाश से बात की थी, आपके अबू फंस जहल चुके की हो। अब लाश मुझे से ये बात की बताओ थी, कि कब्र अबू पे नहीं जहल को था। रसूल झूठ करीम बोल ने रहा है। कब बोला? जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे? जब जमीन के नीचे बोला होता तो फारूक आजम का सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्या मुर्दे सुनते हैं? आपको इल्म ही नहीं नहीं। है उस हदीस में, अरे कुएं का मेरे लफ्ज है, भाई कुएं के तुम अंदर क्या लाशें बात कर पड़ी रहे हो थी। यार? तो इनको इस अरे हदीस का रसूल इल्म करीम नहीं ने है। अबू जहल से कब्र कब का कब लफ्ज कहा है था? जब वो जिंदा उसमें, था या मर गया उसमें था? कब्र का लफ्ज अरे है। हाँ या ना? कब्र है, कब्र का लफ्ज है तशरीह तो क्यों कर अरे रहे तो हैं? इतना ही बता दो। कब्र का कब्र लफ्ज नहीं तो और आसान का हो जाएगा। लफ्ज अगर है, तुम नहीं मानते तो मेरे लिए कब्र और का आसान लफ्ज हो है। जाएगा। क्या हाँ नबी या करीम ना? सल्लल्लाहु कब्र अलैहि वसल्लम ने है। मुर्दों से बात की है? क्या सिंपल मुर्दों से बात की है? सा सवाल है, ये अरे आलम कयास आप क्यों कर रहे हैं? बरज़ख में कब्र कब है, जाता है इंसान? हदीस आलम के अंदर बरज़ख में कब जाता कब्र है? का लफ्ज है। अरे आलम बरज़ख ये में कब जरूरी, जाता है? कोई क्या आप जरूरी घर में नहीं है इंतकाल हो गया इंसान। फिर रूह कब्ज़ों के अच्छा, सीधा आलम बरज़ख में होगा, अच्छा मैं अगर या यही फिर कब्र में कहूँ कि सवाल एक जवाबात के बाद काफिर का, होगा? सुने, अरे एक यार काफिर का अगर तुम एक्सीडेंट क्या, हो जाए, वो तुम बीच जलकर में राख बोल हो रहे हो, जाए, तो तुम वो बीच कैसे में बोल जाएगा रहे हो आलम भाई, बरज़ख में? तुम बिना बीच में कब्र बोल के रहे हो। कैसे जाएगा? अरे तुम चले अटक गए बोले हो। 2 मिनट, आलम 2 मिनट बरज़ख में बोले। इंसान कब जाता है? आलम बरज़ख में इंसान कब जाता है? कब जाता है? दफन होने से पहले, दफन होने के बाद? कब जाता है आलम बरज़ख में? 2 मिनट बोलो आप, मेरा वक्त नहीं अरे है आप। तो 2 मिनट बोलो क्या? तो मैं क्या बोल रहा? अगर आपने इंटरप्ट किया ही है, एक दूसरे में इंटरप्ट किया ही है, तो आप मुझे बताओ ना कि आलम। देखिए देखिए, आपका टाइम अब शुरू हो रहा है, आप बस 2 मिनट है, अब आप बोलिए, खत्म। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने जो इंटरप्ट किया, पहले मेरे इस सवाल का जवाब दे देना। पहले मेरे सवाल का जवाब देते। आलम बरज़ख में इंसान कब जाता मैं देता हूँ, है? मैं देता हूँ, मैं ये देता हूँ, अरे ऐसा मैं कैसे देता हो हूँ। रहा है? जब आपने इंटरप्ट किया तो मैं दूं, मुझे मुकम्मल जवाब दे मैं दीजिए दूं ना। जवाब दूं, आप मैं दूं आपने जवाब। मुकम्मल जवाब दीजिए ना, बैक टू बैक होगा हाँ अभी। मैं देता हूँ, इंटरप्ट आपने मैं किया, देता अपना हूँ। खामोशी इन्होंने इख्तियार ये किया हुआ था। कहा कि बगैर दफनाए, पहली बात तो हमने इस पर कोई कयास आराई नहीं की। अरे इन्होंने हदीस को पढ़ते हुए कबर का लफ्ज सुन, अब सुन लेना, आप आपने जवाब सुन आपने ले, क्यों नहीं डर रहे किया, हैं? आपने नहीं आप किया तो डर रहे इसीलिए हैं, मैंने पूछा। आप डर इसीलिए रहे हैं, एक आप मिनट डर गए, इसीलिए मैंने आप डर पूछा गए। कि आलम बरज़ख में इंसान कब जाता है? मैं दफन होने बता से रहा हूँ ना पहले या दफन होने भाई, के बाद? मैं बता रहा कब हूँ, जाता मैं है? बता रहा हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई इंसान दफन होगा तभी आलम बरज़ख में जाएगा। उसकी मिसाल ये है कि हिंदू कितने लोग हैं जो आज जलकर राख हो जाते हैं, एक्सीडेंट में बहुत सौ की हड्डियां भी नहीं मिलती, जलकर राख वो हो जाते हैं। तो अब बताइए वो आलम बरज़ख में जाएंगे? उनसे सवाल जवाब अरे होगा या अरे नहीं? यहाँ बात अबू जहल की हो रही है, जिसका जिस्म भी है, जिसकी अरे लाश भी है। हाँ, तो वो ये आलम बरज़ख दलील में कहाँ है गया जो है क्या? दफनाया था? ये क्या दलील बात कर कहाँ है रहे हो यार, दफनाया क्या था? बात कर रहे हो ये तुम? क्या तो ये नई बात कर रहा है कि जो कब्र में अबू जाएगा जहल वही कत्ल इसका सवाल कत्ल जवाब किया होगा। गया, जंग बदर में पड़ा हुआ है, तब जो रसूल कह रहे हैं क्या तुमने जो अपना अंजाम कब्र नहीं में देखा? जाएगा वही आलम बरज़ख में होगा, अरे उसके अलावा कोई यार आलम बरज़ख में नहीं होगा। कौन? तो
अगर कोई अरे तो काफिर अरे मर जाता है जिसकी आलम बॉडी जिस्म नहीं होता बरज़ख जल में के तो सब राख हो जाता है। जाएंगे, अच्छा आलम मैं बरज़ख में तो सब एक जाएंगे, मिसाल मगर देता हूँ। बात अबू जहल की हो देखें रही थी, हसन, देखें बात अब्दुल्ला अबू भाई जहल ये की हो डर रही गया, ये थी, बोलने नहीं दे बात रहा घुमा मुझे। रहे हो, बात घुमा रहे हो, फिरौन बात को घुमा रहे हो, पसीने छूट फिरौन रहे को थे, देखें, पसीने छूट रहे थे, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे देखिए मुस्कुराहट अभी रजा भी भाई, है। ये डर गया, एक मिनट आप डर इंटरप्ट गया। मत कीजिएगा, 2 मिनट आपकी वजह से हुआ, अगर आप देखिए बराबर स्टार्टिंग से तो टाइम आप आप दो रुक जाइए, मिनट आप बोले, रुक जाइए। आप 2 मिनट बोले, रजा पसीने भाई किसके 2 छूट मिनट। रहे थे, रजा पसीने भाई ने किसके छूट रहे थे, रजा भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे भाई मुस्कुराहट ने अभी पहले है, बोल पसीने दिया छूट था के कि कैमरा आप ऑफ बात करके भागे बुलाते हो, वक्त आते कैमरा हैं, ऑफ करके भागे यहाँ हो, से वहाँ पसीने छूट घुमाते लिए थे, हैं, ये हर अरे बात कैमरा ऑफ का करके छोड़ भागे दीजिए, हो, मैं अपनी ये दोनों आंखों से ये बात देख रहा हूँ, अरे ये अरे बात को कैमरा ऑफ ध्यान करके ना। भागे हो, अरे मुझसे क्या कह रहे हो, पसीने किसके छूटे? जब मैंने सिर्फ जंगे बदर की बात की, मैंने सिर्फ जंगे बदर की बात की तो एक्सीडेंट पे चले गए, हड्डी टूट गई पे चले गए, कीमा कीमे पे चले गए। तो मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि जब जब अबू जहल मरा तो वो जब कब्र के अंदर, कब्र चले ठीक है, मैंने कब्र का जिक्र किया ना, तो आप मुझे टॉपिक क्या इतना था बता भाई, दीजिए भाई जब वो टॉपिक जमीन क्या के था, ऊपर था तो टॉपिक क्या आपने था, आलम बरज़ख कहाँ से कह टॉपिक दिया? क्या था, आपने आलम टॉपिक बरज़ख कहाँ से टॉपिक कह क्या दिया? था मेरे भाई, एक मिनट टॉपिक क्या था वसीला, एक मिनट, टॉपिक क्या वसीले टॉपिक पे था, टॉपिक वसीले पे था। मैं अपने नबी को जिंदा साबित कर रहा था। आप वसीले के मुनकिर है ना कि नबी का क्यों वसीला बदल नहीं ले गए, सकते। क्यों बदल गए नबी, टॉपिक से? अरे भटक तो तुम रहे हो, हम कहाँ भटक तो तुम रहे, मैं तो अपने नबी को जिंदा भटकाना साबित है, कर बात रहा कर रहे था। हैं हम। मैं अपने नबी को जिंदा साबित कर रहा था। मैं तो अपने नबी से वसीला भी लेता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जिंदा साबित कर रहा था। भाई भटक तो तुम गए। 2 मिनट हो गए, अब ये आपके बताएं, 2 मिनट हो गए, अब अभी मेरे अबू को वक्त जहल को दीजिए, इन्होंने आलम बरज़ख मैं में जवाब तस्वुर देता हूँ। किया, अब इनके आलम 4 मिनट हो बरज़ख में गए, अब्दुल्ला तस्वुर भाई किया। मुझे वक्त दीजिए। अरे क्या भाई बात, अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप चुप रब्बिल रहिए, आलमीन, आपने फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, वो भी चुप रहे, अब आप भी कुछ देर चुप रहिए। जी। पहली बात तो ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो इंसान कब्र में दफन नहीं किया जाएगा वो आलम बरज़ख में नहीं पहुंचेगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला भाई फिरऔन की लाश को इबरत के लिए जिंदा रखा है ना, तो क्या वो उस पर अजाब नहीं होता? अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि हम फिरौन को, जवाब, फिरौनियों को इसका अजाब जवाब, देते हैं, एक मिनट फिरौनियों एक को मिनट भी एक अजाब मिनट देते हैं। आप पागल मत होइए, आप मुझे बोलने दीजिए जनाब, कुरान पेश कर रहा हूँ, आप अपनी अरे तकरीर पेश कर रहे हैं। अल्लाह मेरी बात तबारक व खत्म ही तआला कहाँ हुई जो ने, आप पेश कर रहे हो? अबे भाई अरे सुन लो, अल्लाह तबारक व तू चुप, तआला तू ने सुन पहले। फिरऔन, इसके देखें इसके लिए मैं बदतमीजी कह पर रहा आ था गया अदब अब्दुल्ला में भाई, बात ये करो डर तो गया, अदब में जवाब मिलेगा। ये डर आलम गया, में पसीने छूट रहे हैं, देखो इसके। आलम में आलम बरज़ख की बरज़ख तुमने बात की के ना, लिए जैसे कि कब्र में फिरौन, दफनाना भाई जरूरी है, फिरौन है ना, इसकी फिरौन, दलील क्या है? बोलने फिरौन। दीजिए ना, अरे मुझे क्या बोलने तो बोलने दीजिए, दीजिए, गलती 2 मिनट आपकी है बोलने भाई, आप छोड़ देते आप हैं। एक मिनट पहले, गलती तो आपकी है इसमें ये डर सबसे गए पहले। अब्दुल्ला भाई, इसको अरे कुछ निकाल नहीं दो, अब ये डर नहीं गया बात भाई, अभी करेगा, भी अल्हम्दुलिल्लाह ये चेहरे पे बात नहीं मुस्कुराहट करेगा। है, अभी भी सुनिए चेहरे पे मुस्कुराहट है। आपने मेरे को आलम जवाब देने बरज़ख की दो। कहा था ना, आपने आलम बरज़ख देखिए की बात कहा था, सुनिए, देखिए आपने अरे आलम बरज़ख की कहा था। बोलने ये दीजिए, मेरा 2 मिनट सवाल पहले था, आप बोल एक रहे मिनट थे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मैंने पॉइंट रखा नहीं, तो मैंने आपसे सवाल पूछा था आलम बरज़ख, चूंकि आलम बरज़ख में अबू जहल है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था। हम तो आजाब तो ये भी मानते कि फिरौन पे भी हो रहा है जबकि उसकी लाश बाहर है, हम तो ये भी मानते हैं, ठीक है, तो हम भाई तो तो ये भी फिर क्यों बहस मानते कर हैं। रहे हो? मगर आपने जो कहा था, नबी ने जो मुखातिब होके तो कहा, खुद तो मान लिया बंदे ने कि अबू जहल कहा फिरौन था कबर जरूरी के ऊपर, नहीं है, कबर के खुद नीचे। मान लिया बात है। मेरा सवाल ये था मैं जवाब दे दूं? अरे देखे अरे भाई भाई, ने जिनका खुद मान अकीदा लिया नबी कि को ये मुर्दा कभी कहना, भी उसका ईमान जरूरी कहाँ से नहीं जिंदा है कि होगा? किसी इंसान को बरज़ख में जाने के लिए कब्र में मैं जाना। इन्होंने कहा कि इंसान की अबू बात ही जहल नहीं को कर रहा कब्र, हूँ कब्र मैं। का लफ्ज ना 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 आपने ना बोला, ना ना, मैंने नहीं आप बोला, झूठ बोल रहे आपने कब्र का हो। लफ्ज बोला। अभी मैंने मिसाल मैं दिया झूठ नहीं फिरौन बोल का, रहा, रिकॉर्डिंग हो रही है अभी आपकी। अभी मैंने फिरौन का मिसाल दिया कि फिरौन की लाश बाहर है, आपने कहा कि मगर वो रसूलुल्लाह आजाब में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुब्तला है। ने अबू जहल की कब्र पे जाके मक्का कलाम मक्कारी किया, ना इसकी करो। दलील क्या है? ओ कब्र का लफ्ज ओ कहाँ अब्दुल्ला है? भाई, अब बोलो, अब्दुल्ला मैंने तो मिसाल भाई लेके से क्यों कही है, मुझे तो देखो, मिसाल लेके कही है। मैं मिसाल क्यों नहीं खबर, मानते हो? खबर मिसाल क्यों हदीस नहीं में मान मिसाल रहे नहीं हो? चलती, हदीस के मक्कारी कर लफ्ज रहे का हो, लफ्ज मक्कारी बात कर रहे करो। हो, मक्कारी कर अब्दुल्ला रहे हो। भाई ये डर गए, देखो अरे इनको डर निकालो यहाँ गए, से, ये डर डर गए, चेहरा ये छुपा के डर गए। बैठे हो, पसीने छूट रहे थे, एक भी पसीने दिखाओ चेहरे पे, मक्कार गई, वो तुम दिख झूठ रहा है, बांध रहे थे, पसीने छूट गए। वो दिख रहा है, तो दिख जरा रहा है। उठो नबी उठो, जहाँ बैठे हो अलैहिस्सलाम वहां की पसीने हदीस गिरेंगे पर इन्होंने तुम्हारे। अभी ये कहा था कि कब्र पे जाकर रसूलुल्लाह ने कलाम किया। कहाँ लिखा है हदीस में मैंने कब्र? कब का कब्र पे जाके सलाम किया? नहीं अल्फाज कहा, मेरे कब अल्लाह की है? कसम खा लो, देखो यार क्यों झूठ बोल एक रहे मिनट, हैं मेरे फिर भाई, कब्र बेइज्जती पे क्यों कर जाके झूठ रहे बोल सलाम, रहे हैं? पूरी कब्र पे रिकॉर्डिंग, क्यों झूठ रिकॉर्डिंग बोल रहे दिखाओ, हैं? रिकॉर्डिंग दिखाओ, रिकॉर्डिंग मक्कारी कर रहे हो। कब्र पे हो। जाके नहीं कहा, सलाम का मैंने जिक्र ही नहीं नहीं किया अभी कहा, तक। कलाम कब्र पर कलाम, जाकर अरे सलाम का कलाम मैंने नहीं, जिक्र ही नहीं कलाम, किया। अरे कलाम कलाम कलाम। हाँ, कलाम, कब्र पर जाकर सुन लेकर, कि सुन लीजिए, ठीक से सुन लें, अगर डर लग रहा है तो अरे ना डर बात तो करें। आपको मैंने लग रहा है, कहा चेहरा कि छुपा आपने के
पे बैठे कबर हो, का डर लफ्ज आपको लग रहा है, हसन डर हमें रजवी नहीं लग रहा। साहब, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे हसन पर रजवी मुस्कुराहट है, साहब, पसीना छूट गए आपने तुम्हारे। कहा कि रसूलुल्लाह यहाँ पे सल्लल्लाहु देखो, अलैहि वसल्लम एक अबू मिनट, एक जहल मिनट, की एक कबर मिनट, पर एक मिनट, जाकर एक कलाम मिनट, किया, एक ये मिनट। कबर का लफ्ज कहाँ अरे से लेकर अरे आए आप? कबर
पर जाकर नहीं, जंगे बदर में था, मैंने खड्डे काफिरों का की भी अल्फाज कबर किया। चलो होती मैंने है, मैंने कबर भी काफी मैंने कबर भी कहा, तो रुजू आप करो, साबित कीजिए, रुजू करो, आप साबित रुजू कीजिए करो, कि अबू जहल कहाँ रुजू था, करो। अबू जहल किधर मैं था। साबित करता हूँ, अब और मैं साबित कितने करता हूँ। कुफार वहां पे बचे हुए थे, जो आप कह रहे कुफारों की कलीफे गिरफ्तार बद्र में कितने था। बचे हुए थे। मैं देखिए साबित कर रहा हूँ। एक मिनट देखिए बात में एक मिनट देखिए आप उन्हें 2 मिनट बोलने दीजिए फिर आप बोलिएगा, ठीक है। अब आप पूरे एक अरे चार अरे सात मगर मेरे एक सवाल का जवाब तो अभी वो इनको आप देने बात दीजिए कि वो आप बाद ऐसे में कैसे लीजिएगा, बाद वो में बाद में। सवाल पे अरे सवाल वो खड़ा कर रहे हो, मैं सवाल आज करूँ तो रजी बाद साहब में, फंस ये गए, गलत है, बुरे फंस ये गए। गलत। बात अरे करते डरा रहिए, थोड़े, चेहरा छुपा के बात बैठे हो, बात मुझसे कर कह रहे रहे हैं। हो, चेहरा आप छुपा उन्हीं के मैं तो बैठे हो, आपके मुझसे कह रहे हो। सामने हूँ, मैं तो आपके उन्हें सामने बोलने हूँ, दीजिए देखें। फिर आप कहाँ करिए सामने हो, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अभी, स्टोरी पे देख हाँ, लीजिएगा। आप तो दिख नहीं रहा मैं हूँ। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, आपको दिखा दूंगा मैं, अरे भाई मैं मेरे कैमरे सामने पे हूँ नहीं आ रहे, आपके, चूंकि भाई मैं चूंकि चूंकि सामने हूँ। मेरे आपको मेरे नहीं दिख स्क्रीन पे नहीं आ रहा, रहे, वो वल्लाह ही आपका नहीं आ मसला है, रहे। आपका नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क बराबर है, नेटवर्क बराबर तो है। मैं नबी भी के स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, नबी मैं भी मैंने स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले ले लिया, लेता हूँ। अब्दुल्ला भाई आप भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए स्क्रीनशॉट ले टाइम क्या लीजिए। हो रहा है, 11:51 हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है। 11:51 का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब एक मिनट इनको दिखा मैं देंगे, भी अब अभी का ले ये लेता रोना हूँ, इनका खत्म हो जाए। तो हम तो मान रहे चले हैं ना भाई, आपको नहीं चले दिख रहा होगा, मैं भी आप ये क्यों स्क्रीनशॉट कह रहे ले हैं कि लिया मैंने अभी, चेहरा छुपा लिया। 11:51 का हम तो मैंने भी मान ले रहे हैं लिया। कि आपका मेरे नेटवर्क स्क्रीन पे खराब हो नहीं आ गया रहा तो मैं होगा। तो वही कहूंगा जो दिख रहा है। अहले हदीस के सामने आके नेटवर्क खराब अहले हो जाता हदीस है के बड़े बड़ों सामने का। बस यही चीज है, ये जरूरी नहीं कि जो दिखता नहीं वो होता नहीं है। नबी दिख नहीं रहे तो मैं मतलब तो ये दिख नहीं कि रहा मर हूँ, गए, मैं माज़ल्लाह तो रब्बिल दिख रहा आलमीन, हूँ, मिट्टी में मैं मिल तो गए। दिख रहा हूँ। अब आप मेरे स्क्रीन पे, ये टेक्नोलॉजी ने साबित अरे कर दिया मेरे अब्दुल्ला भाई भाई कि इनसे तुम कहिए स्क्रीन 2 पे नहीं मिनट दिख दे रहे रहे हो हैं, मतलब नहीं तुम मौजू हाजिर से हो, भाग गए। तुम कहीं और तो दिख रहे हो। ये तो टेक्नोलॉजी ने भी साबित कर दिया। अब नबी तुम्हें नजर नहीं आ रहे, तुम कहते हो नबी। अब्दुल्ला भाई इसको रिमूव करो, ये नहीं बात अरे भाई करने देगा, तमाम तुम जब आवाम ने पसीने सुना। तुम्हारे छूट गए कुछ नहीं हुआ है। अब आपने देख लिया अब्दुल्ला भाई, मैं दिखाना चाह रहा था कि कितने बड़े कज्जाब है। कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, कुछ नहीं बचा, रिमूव कर दो, अरे कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। कब कबर का लफ्ज खुद इस्तेमाल किया इन्होंने, कबर के साथ कहते हैं कि रसूलुल्लाह कबर पर गए अबू जहल की। तो मैंने यही तो लफ्ज पकड़ा भाई, कबर का लफ्ज कहा है, तो मुझसे कहते हैं कि नहीं कबर में नहीं, तो कहाँ थे, आलम बरज़ख में साबित करो। तो कहाँ गए हैं, बरेलवी शरीफ में मज़ारात पे गए हैं क्या, कबर आलम बरज़ख में नहीं है पूरी अबू जहल। रिकॉर्डिंग हुई है, भगा कौन है साबित